ہم بستری کے دوران ٹائمنگ بڑھانا چاہتے ہو تو ہم بستری سے پہلے ایک چیز منہ میں رکھ لو، گھنٹوں لگے رہو گے۔ حکیم لقمان۔ السلام علیکم ناظرین، ہم بستری کی ٹائمنگ انسان کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ اپنی شریک حیات سے قبل ہمیشہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ چیز آپ دونوں کے باہمی تعلقات میں دراڑ کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ مردوں کے اندر اکثر جلد فارغ ہو جانا مردانہ کمزوری کی ایک اہم علامت ہوتی ہے۔ ہم بستری کی ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے اکثر مرد مختلف ادویات کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، جس کے سائیڈ ایفیکٹ ان کی صحت کو متاثر کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ان ادویات کے بغیر بھی دیسی اور قدرتی چیزوں کا استعمال کر کے بھی ہم بستری کی ٹائمنگ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہم بستری ٹائم کم ہونے یا جلدی فارغ ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ ہم بستری ٹائم کے کم ہونے سے مراد یہ ہے کہ قربت کے لمحات میں شریک حیات سے پہلے فارغ ہو جانا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق دخول کے صرف 1 منٹ کے اندر فارغ ہو جانے کا مطلب مردانہ کمزوری ہے، جبکہ دخول کے بعد 3 سے 7 منٹ کا وقت نارمل تصور کیا جاتا ہے، اور نارمل ٹائم سے قبل فارغ ہو جانا ہم بستری کی ٹائمنگ کم ہونے کی طرف اشارہ ہے، جس کا علاج ہونا ضروری ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بستری کی ٹائمنگ بڑھانے کے لیے ایک ایسی چیز کے بارے میں بتائیں گے کہ جو ہم بستری سے قبل یعنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے اگر منہ میں رکھ کر ہم بستری کی جائے تو مرد کم از کم 30 منٹ یا اس سے زائد وقت تک ڈسچارج نہیں ہوگا اور اپنی بیوی کو زیادہ وقت دے کر آرام سے مطمئن کر پائے گا۔ ناظرین، یہ نسخہ خود سے نہیں بنایا گیا اور نہ خود سے بتایا جا رہا ہے، بلکہ یہ حکیم لقمان کا بتایا ہوا بہت نایاب نسخہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ بغیر ادویات کے ہم بستری کی ٹائمنگ بڑھانے کا قدرتی طریقہ کیا ہے کہ جو نہ صرف آپ کی جنسی صحت کو بہتر بنائے گا بلکہ آپ کی جسمانی صحت کو بھی 4 چاند لگائے گا۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی ادویات یا دیسی نسخہ آپ کی جنسی صحت کو تبھی بہتر بنا سکتا ہے جب آپ اس نسخے کے استعمال کے ساتھ ساتھ جنسی اور جسمانی صحت کو بہتر بنانے والی چیزوں کو اپنائیں گے اور جنسی اور جسمانی صحت کو خراب کرنے والی چیزوں سے اجتناب کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹائمنگ بہتر ہو اور آپ کی جسمانی صحت اچھی ہو تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ باقاعدگی سے ورزش کریں۔ باقاعدگی سے ورزش کرنے سے دل کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ جب ہم بستری کی جاتی ہے تو اس سے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہوتا ہے، مگر وہ انسان جو باقاعدگی سے ورزش کرتا ہے اس کے دل کی حالت دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کا دل اور اس کی دھڑکن بہتر انداز میں کام کرتے ہیں تو اس کے جسم میں خون کی روانگی بھی بہتر انداز میں ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر خون اس کے جسم کے ہر حصے تک رگوں کے ذریعے بہتا ہے۔ خون کا بہاؤ بہتر ہونے کی وجہ سے نفس کی رگوں تک بھی اس کی فراوانی اچھے انداز سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت بہتر انداز میں چست چاق و چوبند رہ کر ہم بستری کر سکتا ہے۔ ہر روز آدھے گھنٹے تک ورزش کر کے پسینہ بہانا جسمانی صحت اور جنسی کارکردگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ باقاعدگی سے ورزش کرنے سے انسان کے پٹھے اور دیگر عضلات مضبوط ہوتے ہیں، جس سے جنسی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور کنٹرول میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسمانی ورزش کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی دماغی ورزش بھی کرنی چاہیے، جو کہ ہم بستری کے وقت انسان کی بہت مدد کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہم بستری کرتے وقت انسان کا ذہن ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہ دیں، ذہنی دباؤ سے آزاد رہیں۔ ذہنی دباؤ صرف جسمانی طور پر انسان کو کمزور نہیں کرتا بلکہ وہ اعصاب کی کمزوری کا بھی سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے اعصابی کمزوری جنسی کمزوری کا بھی سبب بن سکتی ہے اور اس سے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ذہنی دباؤ اور پریشانی کو خود پر حاوی کرنے کے بجائے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔
जिनसी अमल के दौरान हम बस्तरी की टाइमिंग बढ़ाने का दबाव लेने के बजाय इस वक्त को एंजॉय करें और कोशिश करें कि इस दौरान खुशी को महसूस कर सकें। सांसों के अंदर बाहर करने से खुद पर कंट्रोल हासिल करें और उस वक्त में दीगर मसाइल और परेशानियों के बारे में सोचने से परहेज करें। बहुत से लोग जिनकी मर्दाना टाइमिंग नहीं है वो हम बस्तरी से पहले खुद के जहन पर ये परेशानी और बोझ सवार कर लेते हैं कि वो हम बस्तरी के अमल को टाइमिंग ना होने की वजह से बेहतर अंदाज में सर अंजाम नहीं दे पाएंगे, तो इसी खौफ और डर की वजह से वो हकीकत में कुछ नहीं कर पाते, ना ही ज्यादा देर तक हम बस्तरी कर पाते हैं। माहिरीन के मुताबिक हम बस्तरी के दौरान इस तरह का खौफ और डर एक अच्छे भले इंसान की भी जिनसी कारकर्दगी को मुतासिर कर सकता है। इस खौफ और डर को दूर करने के लिए मर्द को चाहिए कि वो हम बस्तरी से कबल औरत का और अपना इरादा पुख्ता करते हुए एक दूसरे का मूड बनाएं और हम बस्तरी के अमल को बेहतर अंदाज में सर अंजाम देते हुए दखुल से कबल इसकी तैयारी करें। आम तौर पर खवातीन के लिए दखुल से कबल का वक्त ज्यादा अहम होता है। इसके लिए अपनी साथी को रोमांस के जरिए तैयार करना मर्द की अहम जिम्मेदारी होती है। वर्जिश और ज़हनी सुकून के साथ साथ सबसे अहम चीज जिनसी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए आपकी खुराक है। कोशिश करें कि हमेशा सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, देसी ग़िज़ाओं पर ज्यादा तवज्जो दें। अगर आप अपनी जिनसी सेहत में किसी भी किस्म की खराबी महसूस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी ग़िज़ा पर गौर करना चाहिए। अगर आप ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सिर्फ ज़बान के मज़े के लिए है और सेहत के हवाले से बेहतर नहीं है, तो यकीनन इसके असरात आपकी जिनसी और जिस्मानी सेहत पर होंगे। ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल मर्द की जिनसी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है जिसमें प्रोटीन की मिक़दार वाफिर हो। मर्द अपनी जिनसी कमजोरी को दूर करने के लिए मछली, जैतून का तेल, खजूर, बादाम, अखरोट, पिस्ता, दूध, इसबगोल, अंडे और मुख्तलिफ सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ चीजों से परहेज करना भी जरूरी है, जैसे कि तंबाकू नोशी मर्दाना कमजोरी का एक बड़ा सबब है, जिसको छोड़कर मर्दाना कमजोरी पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा गैर जरूरी और फहाशा मवाद देखने से गुरेज की जाए और खुद लजाती से दूर रहने की कोशिश की जाए। टाइमिंग को बेहतर बनाने के लिए लहसुन और प्याज का इस्तेमाल भी बहुत मुफीद रहता है। केला पोटाशियम से भरपूर ग़िज़ा है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करके हमबस्तरी की टाइमिंग बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। काली और सब्ज मिर्च जो कुदरती जूस के तौर पर जानी जाती हैं, उनका इस्तेमाल अंदरूनी सोजिश और ब्लड प्रेशर को कम करके हमबस्तरी की टाइमिंग को बेहतर बनाती हैं। विटामिन B1 जो मुख्तलिफ किस्म की दालों में मौजूद होता है, अंडे जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इन सब अशिया का इस्तेमाल जिनसी सेहत के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। नाज़रीन, कुछ मजीद नुस्खे और टोटके आपकी जिस्मानी सेहत के लिए भी बता देते हैं। अगर किसी शख्स को बादी, बवासीर या खांसी दमा हो तो वो मेथी का इस्तेमाल करें, बहुत फायदा मिलेगा। अगर किसी के दांत में दर्द है तो एक चुटकी मीठा सोडा और एक चुटकी सफेद नमक मिक्स करके दांत पर मिलें, चंद मिनटों में दर्द खत्म हो जाएगा। जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा गिरते हों उनके लिए ये नुस्खा बहुत लाजवाब है। कलौंजी का तेल और अदरक का पानी हम वजन लेकर रोजाना सुबह शाम बालों में लगाएं, बाल गिरना बंद हो जाएंगे और नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी को खूनी और बादी पेचिस का मसला हो तो 1.5 खाने का चम्मच इसबगोल का छिलका लें और फ्राई पैन में थोड़ी सी मिकदार में कुकिंग ऑयल डालकर गरम करें। जब ऑयल गरम हो जाए तो इसबगोल गरम ऑयल में डालें और हल्का ब्राउन हो तो थोड़ी सी चीनी मिलाकर खाएं। इसके बाद कहवा या चाय पी लें, इंशाअल्लाह पहली मर्तबा ही तकलीफ रफा हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर सुबह हो शाम 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल करें। निहायत ही मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा है। जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत करते हैं वो रोजाना 5 दाने अच्छी क्वालिटी की खजूर का इस्तेमाल करें, फौरी तौर पर तवानाई बहाल हो जाएगी।
तालिब इल्म सुबह और शाम आधा चम्मच शहद खा लिया करें, इससे वो ज्यादा देर तक पढ़ सकेंगे और यादाश्त भी बेहतर होगी। वो लोग जिनके मिदे में तेजाबियत ज्यादा हो जाती है, इन्हें चाहिए कि ताज़ा सीबों का रस खूब इस्तेमाल करें। मोटापा बहुत ज्यादा हो गया है तो कम करने के लिए हर रोज 5 दाने खुश्क इंजीर खाना बेहद मुफीद है। इंजीर खाने से खून भी साफ हो जाता है और रंगत निखरती है। तो नाज़रीन, अब आपको आज की वीडियो के हम नुस्खे के बारे में बताते हैं। अगर आपकी टाइमिंग कम है और मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं, अपनी टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं और तादेर हमबस्तरी करके अपनी शरीक हयात को मुतमईन करना चाहते हैं कि जिससे वो आपकी दीवानी हो जाए, तो एक आसान और बेहतरीन नुस्खा आपके लिए हाजिर है। नाज़रीन, जब भी हमबस्तरी का इरादा हो तो बीवी के पास जाने से पहले अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें और अपनी जबान के नीचे रख लें। इसके बाद बीवी के साथ जिमा करें और कमाल देखें इस नुस्खे का। जब तक उस टुकड़े में असर रहेगा, आपका नफ्स भरपूर ताकत में रहेगा और टाइमिंग भी इस वक्त तक बरकरार रहेगी। इस नुस्खे के जरिए घंटों हमबस्तरी करके खुद और अपनी शरीके हयात को लुत्फानंदोज कर सकते हैं। अगर सुबह के वक्त एक गिलास ताज़ा पानी में एक खाने का चम्मच लेमू का रस और थोड़ा सा नमक मिलाकर पी लिया जाए, तो ये मिदे और दांतों की सफाई के लिए बेहतरीन है और इससे मिदे और दांतों की खराबियां बेहतर हो जाती हैं। ये थी नाज़रीन हमारी आज की वीडियो के जिसमें आपको एक आसान नुस्खा बताया है कि जिसको अपना कर आप देर तक हमबस्तरी कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद इस तरह की जिनसी व जिस्मानी लिहाज से मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगली एक नई वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।